کیسی ہو؟ اس کے سامنے بیٹھتے محبت سے بولی۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اس وقت وہ لوگ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھی۔ دانیل نے بیگ سے ایک چھوٹا سا انویلپ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہی ڈیٹا جس کے لیے تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ دھماکوں سے مسکرا کر اسے دیکھا تو فاریہ نے حیرانگی سے اسے اور پھر انویلپ کو دیکھا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے فوراً بیگ میں چھپا لیا اس نے۔ کہ تمہیں کہاں سے ملا دانیل؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا تھا اور پھر دانیل نے اسے پوری کہانی سنا دی، کیونکہ جان گئی تھی کہ یہ سانپ یہ نہیں وہ ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی رہی تھی۔ تم نہیں جانتی دانیل، یہ سیڑھی ہم تک پہنچا کر تم نے اس قوم کی نہ جانے کتنی بیٹیوں کے سر پر چادر ڈال دی ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ محبت سے بولی، مگر میں ماریا کو نہ بچا سکی فاریہ۔ اس بات کا ملال اسے شاید عمر بھر رہنا تھا۔ نہیں دانیل، ہونی کو کوئی نہیں ڈال سکتا، پلیز خود کو بلیم مت کرو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ معصوم سی لڑکی کسی گلٹ میں رہے جو چند دن میں ہی اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ مجھے چلنا چاہیے، ماما ویٹ کر رہی ہوگی۔ اپنی لٹے کان کے پیچھے رڑستے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے سنا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے، مجھے نہیں بلاؤ گی؟ اس کی مسکراتی آواز پر دانیل نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم صرف مشن کی حد تک میری دوست تھی شاید۔ اس کے طنز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نہیں، میں ایسی نڈر لڑکی کی مشن کے بعد بھی دوست رہنا چاہتی ہوں۔ اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ دانیل نے بھی اس کے مسکراتے ہوئے گلے لگا لیا تھا۔ فرائیڈے کو مائیوں ہے میری، اگر فرصت ملے تو آ جانا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے خشمگین لہجے میں بولی۔ اوکے میڈم، ہلکا سا سر خم کرتی اس کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ باہر کار کے پاس سارم اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اپنا باڈی گارڈ ساتھ لائی تھی؟ منگیتر ہے میرا، فاریہ سے گھور کر بولی۔ وہی گہری سانس بھرتی کار کی جانب بڑھ گئی۔ چاہے جو بھی تھا، اسے ان کا کڈنیپنگ والا عمل بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میڈم، وہ لونڈی ابھی تک اپنی دوست سے ملنے ریسٹورینٹ آئی تھی، اب واپس جا رہی ہے۔ سنتو بھائی کا آدمی جو کب سے اسے فالو کر رہا تھا، اس کے نکلتے ہی اس کی کال لگائی تھی۔ کیا بات ہوئی ان دونوں کے درمیان؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ تو نہیں سنی میڈم، گڑبڑا کر بولا۔ الو کے پٹھے، تو کیا ان کی شکلیں دیکھنے گیا تھا؟ اسے ایک واہیات گالی سے نوازی چیخ اٹھی تھی۔ کتوں، نظر رکھو اس پر، حکم دیتی کال کاٹ گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ دانین حسن جیسا چھوٹا سا بلبلا اسے تگنی کا ناچ نچانے والا تھا۔ یہ کمینی کہیں ایجنسی کے ہتھے نہ چڑھ جائے بھائی۔ اس کے قریبی بندے جمشید کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کچھ ہی عرصے پہلے یہ گینگ جوائن کیا تھا۔ سنتو بھائی کا چہرہ ایک پل کے لیے زرد پڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔ جمشید تو جانتا نہیں، شاید جس ایجنسی کے کئی افراد کے گھر رات کے اندھیروں میں نے ہی محفلیں سجواتی ہوں۔ بےہودگی سے کہکھا لگاتی شراب گلاس میں بھرنے لگی۔ ویسے ایک اچھی خبر ہے میرے پاس۔ سنتو بھائی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جرمنی سے مال آیا ہے، اسی کو ان لوڈ کرا کے آیا ہوں ابھی۔ شاباش جمی، بس ایک تو ہی لائق ہے ان نکموں کی فوج میں۔ شباسی سے کہتی مسکرا کر اس کے لیے بھی شراب کا گلاس بھرنے لگی تھی۔ آج شاید اس پر قسمت واقعی مہربان تھی۔ اس نے بے خیالی میں ہی کال ملائی تھی اور دوسری طرف سے بے سری کسٹمر والی کوئی لڑکی نہیں بلکہ بالاج ذوالفقار کی روبدار آواز گونجی تھی۔ ہیلو۔ اتنے دن بعد ایک دشمن جاں کی آواز اس نے حواس مختل کر ڈالے تھے۔ عدن بشیر صاحبہ، آپ نے مجھے ہی کال کرنی تھی نا؟ اس کی خاموشی پر بالاج کی مسکراتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ ماتھا پھیرتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے میجر بالاج سے بات کرنی تھی، کافی عرصے سے گمشدہ ہے۔ اس نے بھی سنبھل کر جوابی کارروائی کی۔ اوہ، وہ تو اس وقت مصروف ہے، کوئی اہم بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ لہجہ انتہائی مؤدب تھا۔ یہ آپ کے بالاج صاحب مجھ سے بھاگنے میں کیوں لگے ہیں؟ کبھی پوچھیے گا، سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ وہ خود سے بھی اسی طرح بھاگتا ہے، اس لیے یہ شکایت اٹھا کر رکھو۔ ایک گہری سانس بھرتا ہوا وہ بولا۔ اور اگر میں تمہارے صاحب سے اصل وجہ پوچھ لوں تو کیا وہ بتائیں گے؟ بالاج کو لگا آج وہ بخشنے والی نہیں ہے۔
क्यों साहब जी को मुश्किल में डाल रही हैं अदन साहिबा? वो तो खुद गमे दौरां के जालों में उलझे हैं। इसकी मिस्कीनियत पर अदन बेबसी होने लगी। ये हालत तो आपने अपने साहब की गलत बताई है। ज़रा हमारा पैगाम भी दीजिएगा। गमे दौरां ने भी सीखा है गमे जाना का चलन। वही सोची हुई चालें, वही बेसाख्तापन। इसके खूबसूरत लबो लहजे उसके दिल के शकों को बड़ी खूबसूरती से तर्जुमानी की थी। भला जुल्फ़िकार मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। आज तो शायद मैं साहब के सामने आपका वकील बनकर खड़ा हो जाऊं। लहजे में बला की शोखी थी। अदन खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़ी मेहरबानी, डबल फीस देंगे फिर हम आपको। इसके लहजे की खनक ने बालाज को चंद पल के लिए जैसे इस उलझन भरे माहौल से कई मील दूर कर दिया था। हेलो, कहाँ गए? इसकी मुसलसल खामोशी पर वो बोले बगैर नहीं रह सकी। हाँ, यही हूँ। एस्टिमेट कर रहा हूँ डबल फीस कितनी होगी। कॉफ़ी का सिप लेता मुस्कुरा कर बोला, जबकि अदन को इसके इतने खुशगवार मूड पर हैरत हो रही थी। और कैसे हैं वहाँ सब? उसने दानिस्ता बात बदल दी। अदन का दिल चाहा कि कहते कि तुम्हारे बगैर अदन बशीर के समेत पूरा शहर उदास है, मगर वो बात सिर्फ अपने दिल से ही कह सकती थी। ठीक है सब, आज गई थी तुम्हारे घर। आंटी बहुत खुश हैं तुम्हारे पास आने पर। अपनी हथेलियों को देखते मुस्कुरा कर बोली, असल तो अपनी बिछड़ी दोस्त के पास आने की खुशी है। मैं आंटी को बताऊंगी क्या कह रहे थे तुम? खशमगीन लहजे में बोली। ठीक है, जैसा बेहतर लगे तुम्हें। मुस्कुराकर चंद और इधर उधर की बातें करता राब्ता मुनक़ता कर गया था। आज वो खुद को काफ़ी उलझा हुआ महसूस कर रहा था। जब से फारिया ने वो डाटा उसे दिया था, वो हैरान हुआ था, क्योंकि उसे लगता था दानाइन हसन कुछ न कुछ तो इस औरत के बारे में जानती थी और थोड़ा बहुत फ़ायदा वो भी उठा रही होगी। मगर ये सीढ़ी अपने हाथ में देखकर दानाइन हसन के बारे में लगाए गए इसके तमाम अंदाजे गलत साबित हुए थे। अब इसे बस संतोबाई तक पहुंचना था। आज दानाइन की माइयों थी। असद ने जब सदोही बेगम को बालाज की फैमिली की शादी के बारे में शिरकत का बताया तो वो तब से ही बहुत खुश थी। एक अरसे बाद अपनी पुरानी दोस्त से मिल रही थी। आज शाम की फ्लाइट से इन्हें डायरेक्ट फंक्शन में पहुंचना था। आज का फंक्शन कंबाइन रखा गया था, जो बैंक्वेट में मुनक्किद था। असद अपनी लाडली बहन की शादी में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता था। मामा, मुझे आपसे और माहिन से बात करनी है, रूम में आए। वो दोनों लाउंज में उपटन की बाउल सजा रही थी जब असद ने इन्हें अपनी जाने मुतवज्जो किया। क्या बात है बेटा, खैरियत है ना सब? वो परेशान सी हो गई थी। जी मामा, सब खैरियत है, बस बात करनी है आपसे। इन्हें प्यार से बाजू के हल्के में लेते कमरे की जाने बढ़ गया। सुबह का वक्त था। दानायन अभी सो रही थी। माहीन ने असद के इशारे पर रूम लॉक कर दिया था। मामा, दानायन की शादी के एक दिन बाद हम सबको कनाडा रवाना होना है। इन्हें बेड पर बैठता बराबर में बिठा गया था, जबकि माहीन और सबूही बेगम ने हैरत से उसे देखा था। मगर बेटा, ये कैसे मुमकिन है? हम दानायन और अपना मुल्क छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो बेचैनी से बोली। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, बट मामा, वो जॉब नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छा पैकेज मिला है मुझे। वो लोग घर ऑफर कर रहे हैं मुझे। मैं बस अब आप लोगों के बगैर तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इनका हाथ चूमता मोहब्बत से बोला। उन्होंने मोहब्बत से बेटे को देखा जो एक अरसे से दयाल खैर में अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा था। मेरे बेटे, मगर दानाइन अकेली कैसे रहेगी? और जब उसे पता चलेगा इस बात का तो कितना बवाल मचाएगी। इन्हें इसकी भी फिक्र सता रही थी। मैं जानता हूँ मामा, इसलिए जैद को इसके बारे में मैंने पहले ही आगाह कर दिया है और उसने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास मिलवाने लाएगा। और दानाइन को भी इसलिए नहीं बताया कि वो तो शादी ही कैंसिल करके बैठ जाएगी। हंसते हुए बोला तो माँ ने घूरते हुए चिपक लगाए। लेकिन हम इससे इतना दूर कैसे रहेंगे? माहिन को भी इसकी फिक्र सता रही थी। मेरे पास अगर कोई और ऑप्शन होता तो कभी अपनी गुड़िया को छोड़ कर ना आता। वो भी जैसे इस मामले में बेबस था, क्योंकि फिक्र तो इसे भी थी अपनी जान से अजीज बहन की। यार भाभी, ये सर पर क्यों अटका रही हैं? ऐसे ही गले में डाल लेती हूँ ना बस। उसने झुंझुलाकर माहिन को कहा जो कब से इसका दुपट्टा सेट करने में लगी थी। इसने पार्लर जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए माहिन और फारिया ने खुद ही घर में तैयार कर दिया था। गेंदा कलर की शिफॉन की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में हम रंग दुपट्टा और एक छोटी सी कली मालूम हो रही थी। फारिया दोपहर से ही आई हुई थी। हाँ,
कैट वॉक करने जा रही हूँ ना, जो गले में दुपट्टा डाल दूँ। घूर कर इसे देखा जो अपनी चुटिया में लगी कलियों से जोर आजमाई कर रही थी। ये लो गजरे पहनो हाथों में जल्दी। ये लो कुर्ता पजामे में तैयार फारिया उजलत में कमरे में दाखिल हुई थी। कोई यकीन नहीं कर सकता तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट एजेंसी से है। उसे घूर कर बोली तो फारिया खिलखिला के हंस पड़ी। क्यों, हमारे जज्बात नहीं होते क्या? अजीब पागल लड़की है। इसकी चपत लगाती हाथों में गजरे पहनाने लगी। फारिया से देखकर बाहर आ जाना, शायद मेहमान आ चुके हैं। माहिन उजलत में बाहर निकली थी। लाउंज में सरूही बेगम के साथ नफीस लिबास में एक पुरवकार औरत और प्यारी सी लड़की बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने झट सलाम किया। जवेरिया बेगम ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। माशाल्लाह सरूही, तुम्हारी बहुत बहू तो बहुत ही प्यारी है, मोहब्बत से साथ लगाते हुए बोली। और ये? माहिन ने लड़की की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं रुतापा, क्या मैं दानैन को देख सकती हूँ? वो पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ी। माहिन खुलकर मुस्कुराई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस आवाज पर जवेरिया बेगम और रुदाबा ने हैरत से मुड़कर देखा। सामने ही वो सजी सवरी आंखों में शरारत लिए खड़ी थी, जबकि कमरे से निकलती फारिहा इन दोनों को देखकर साकत रह गई थी। ओह गॉड, कितना बदल गई हो तुम नैनी, चीखते हुए उसके गले लग गई। वो दोनों हम उम्र थी, बचपन भी एक साथ ही गुजारा था। इतने साल बाद इतना बदलाव देखकर तो वो दंग ही रह गई थी। इसकी बात पर दानैन खिलखिलाकर हंसी थी और कहते जैसे तू पूनियां बांध कर फिर रही हो अब तक। अलग होते हुए घूर कर बोली तो जवेरिया बेगम भी करीब चली आई थी। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। इसका माथा चूमकर अपने साथ लगा लिया। दानैन इस अपनायत पर मुस्कुरा उठी थी। जवेरिया बेगम की नजर फारिहा पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गई। फारिहा, तुम यहाँ? वो हैरानगी से बोली तो रुताबा ने कोने में खड़ी फारिहा को अब देखा था। इसके तासुरात भी मुख्तलिफ ना थे। ऐसे क्यों देख रहे हैं सब मुझे? फ्रेंड हूँ मैं भी दानैन की, मगर आप लोग यहाँ कैसे? गड़बड़ाकर वो करीब आते हुए बोले। बस, गुमशुदा दोस्त मिल गए हमारे। उन्होंने मुस्कुराकर सबूही को देखा और फारिया से तफसील जानना बात के लिए रख दिया था, क्योंकि वो जो महसूस कर चुकी थी, इसके बाद तफसील जाननी लाजमी हो गई थी। अपनी शक्ल लेकर गुम हो जा, नहीं तो यही शूट कर दूंगा। पार्किंग में उसे इत्मीनान से खड़ा देख असद का पारा हाई हुआ था। पूरे फंक्शन में वो इसका इंतजार करता रहा था, मगर वो ना आया था। न आया। देख तो मुझे सफाई का एक मौका जरूर दे, इस तरह महबूबा की तरह नाराज मत हो। उसके पीछे अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ता हुआ बोला। वो एक घुरी से नवाजता उसे नजरअंदाज करता अपार्टमेंट का लॉक खोलने लगा। क्या पोगा पागल हो गया है? सुन तो ले मेरी मजबूरी। इसके साथ अंदर दाखिल हुआ। रात के 3 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा छाया था। तमाम अफराद सो चुके थे। जवेरिया बेगम और रुदाबा दोनों आज यहीं रुकी थी। अच्छा, जरा पता तो चले, ऐसी क्या वजह थी कि तू 1 घंटा भी नहीं निकाल सका, जबकि फारिया भी आई थी तेरी। तेरी साथी है ना वो भी? तंजिया लहजे में बोला तो वो एक गहरी सांस भरकर सोफे पर ढह गया। सारम और मुझे रेड डालनी थी, इमरजेंसी कॉल थी। अब डाल देता तो क्या? तो खुद बता। इसकी तोजी पर वो इसे घूर कर घूरता रह गया। आंटी और उदाबा यहीं रहेंगी और तू भी कहीं नहीं जाएगा, समझ आई? रोबदार लहजे में बोला तो वो फौरन सरेंडर कर लिया। काफी पिएगा? नेकी और पूछ पूछ। इसके और पर फौरन मार गया था। वैसे इतना कुछ नहीं कह सकता, बट मॉम और रोदी को रोक सकता है तो यहाँ। इसके मुड़ने पर पीछे से हाथ लगाता उठ खड़ा हुआ। पूरे लाउंज का जायजा लेता बालकनी में निकल आया, मगर दरवाजे पर एक कदम ठहर गए थे, क्योंकि वो सामने ही बाल खोले माइयों के कपड़े में खड़ी अपनी सोचों में गुम आसमान की तारीकियों में न जाने क्या खोज रही थी। घने बालों की लटें बार बार चेहरे पर अटकेलियां खेल रही थीं। खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई तो एकदम चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहां खड़ी शख्सियत ने उसे जैसे साकित कर दिया था। वो बेयकीनी से इस शख्स को अपने घर में खड़ा देख रही थी। तुम तुम यहाँ? वो गुस्से से पागल होती उसकी जानिब बढ़ी। बालाज भी एकदम होश में आया था। जल्दी से मुड़कर रसद को देखा, जो किचन में था। उसे खींच कर दीवार से लगा दिया और इसकी चीख निकलती इससे पहले वो इसके मुंह पर हाथ रख चुका था। बेवकूफ लड़की, अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इसी बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। कान के करीब झुकता गुस्सीले लहजे में बोला। अपने अजीज दोस्त की नजरों में इसकी किसी भी बात की वजह से
कतन गिरना नहीं चाहता था। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर तक आने की, जब मैं वो सीढ़ी दे भी चुकी हूँ? बोलो। उसका हाथ हटाकर धक्का देना चाहा। यार बालाज कहाँ गया? असद की आवाज पर दोनों चौंके। दानिश ने हैरानगी से इसे देखा, जो तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराकर इसे छोड़ता अंदर की जानिब चल गया था। क्या भाई जानते हैं इसे? इसके लब बहुत आहिस्ता से फड़फड़ाए थे और तेजी से अंदर की जानिब बढ़ी, जहाँ वह दोनों बातों में काफी पी रहे थे। अरे नैनी, अब तक जा रही हो यार? उसे साकत खड़ा देखकर असद ने पुकारा। उसने चौंक कर भाई को देखा। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा था। समझ ना आया क्या कहे। इधर आओ, इनसे मिलो। ये बालाज, जवेरी आंटी का बेटा और मेरा बचपन का दोस्त। तुम छोटी थी, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। उसे अपने पास बुलाकर प्यार से बोला। दानैन ने बस एक नज़र उसे देखा, जो लबों पर धीमी मुस्कुराहट लिए इन्हें ही देख रहा था। रहने दे असद, मैं जानता हूँ दानैन को। इन्हीं के डिपार्टमेंट में एज अ टीचर अपॉइंट हुआ था, बट मुझे मालूम नहीं था कि ये तेरी बहन है। असद ने चौंक कर इसे देखा। अच्छा, मतलब दानैन तुम जानते हो? असद ने हैरत से पूछा। दानैन ने एक नज़र उसे देखा और नफ़रत से निगाह मोड़ ली। जी। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। इसका सर चूमकर वो बोला। वो फौरन अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। चल मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल आऊँगा दोबारा। मग रखता उठ खड़ा हुआ और असद ने उसे घूर कर देखा। निहायत ही खबीस इंसान है तू, अपनी करके ही दम लेगा। इसके कंधे पर पंच मारता झंझला कर बोला तो वो कह कहाँ लगाता, उसे खुदा हाफिज कहता बाहर निकल गया। वो दानैन हसन को इस घर में देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि वो असद हसन की बहन है। लेकिन ये खबर उसे 2 दिन पहले ही हुई थी, जब उसने दानैन हसन का आईडी कार्ड उस रूम में पड़ा देखा था जहां अगवा करके उसे रखा गया था। मगर वो ये नहीं जानता था कि उसका ये कदम उससे क्या क्या करवाने वाला था। वो अपार्टमेंट पहुंचा तो फारिया और सारा इसी के इंतजार में बैठे थे, और वो जब वो अच्छी तरह जानता था, इसलिए वही सोफे पर आकर बैठ गया। क्या आप बताना पसंद करो कि ये सब क्या हो रहा है? सारम की बात पर एक सांस खींच कर रह गया। हाँ, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, मगर हमें इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। दनैन हसन असद की बहन है और इस बात की खबर मुझे 2 दिन पहले उसके आईडी कार्ड देखकर पता चला था। वैसे भी इसका हमारे मिशन से ताल्लुक नहीं, इसलिए भूल जाओ सब। इसका लहजा पुरसुकून था, और अगर उसने कुछ कह दिया तो? सारम का खदशा बचा था। इसका अब इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए ख्वाम का पंगा नहीं लेगी। उसकी आज की खामोशी याद करते हुए वो बोला। और आंटी, वैसे इन्हें तो मुतमईन कर दिया है कि वो मिशन के दौरान मिली थी। फारिया ने भी अपना खदशा जाहिर किया। जो होगा देखा जाएगा, अजाब बन गई है ये लड़की। झुंझलाता हुआ उठ खड़ा हुआ और फारिया ने शिकवा करना नजरों से इसे देखा, जबकि सारम ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। नहीं, मैंने मना कर दिया तुम्हें, फिर क्यों सद कर रही हो? हाँ, सबूही बेगम टपकते हुए बोले। क्यों मना कर दिया आपने? कोई ऐसा करता है होने वाली दुल्हन के साथ? तब कर उनके पीछे किचन में आई। रुब धाबा और जवेरिया बेगम सुबह ही वापस पलाज के अपार्टमेंट चली गई थी। ग्रीन हाफ स्लीव्स कुर्ती और टाइट्स पहने, बालों की ऊंची सी पोनी बनाए, इस दिल को छूने वाले अनोखे रूप में झुंझुलाई हुई फिर रही थी। अभी वो मेहंदी लगवा कर फारूक हुई थी। असद और माहिन ज्वेलर के पास गए हुए थे, बस वो दोनों ही घर पर थी। एक जगह टिक के बैठ जाओ, मेहंदी खराब हुई ना तो मार खा लोगी अब मुझसे। इसकी खुशीली आवाज पर उसने उसे घूर कर देखा, जबकि दरवाजे से अंदर दाखिल होती फारिहा और रुदाबा खिलखिला उठी थी। जवेरिया बेगम और बालाज भी साथ ही दाखिल हुए थे। आंटी कितनी अच्छी लगेगी ना शादी से 1 दिन पहले की दुल्हन पिटते हुए। इसकी तपती हुई शक्ल देखकर फारिया मजे से बोली। दानैन किचन में थी, इसलिए देख ना सकी कि कौन कौन आया। हाँ, तो खुद बताओ, कौन होने वाली दुल्हन की नखरे उठाता है, या इस तरह डांट? किचन से निकलते दिल की भड़ास निकालती, मगर सामने सोफे पे बैठे बालाज को देखकर इसके मुंह के साविये बिगड़ गए थे। हाँ बेसब्री, मेरी बेटी की फरमाइशें पूरी करनी चाहिए तुम्हें तो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बल्लभ भेजकर वापस किचन में जाने लगी। वैसे भी वो कब से बगैर दुपट्टे के घूम रही थी। रुदाबा ने हैरत से उसे देखा। मेहंदी खराब हो जाएगी दानैन, क्या कर रही हो? उसे पकड़कर बाहर लाने लगी। दानैन का दिल चाहा अपना सर पीट ले। बालाज ने बस एक नज़र इसके बिगड़े तासुरात को देखा था, जो लाउंज में आते सोफे पर
अपना दुपट्टा उठा रही थी, फिर मोबाइल पर नजरें जमा दी। जवेरिया सुबह फ्लू हो रहा था इसे, अब आइसक्रीम के पीछे पड़ी है। इतनी मुश्किल से तो ठीक हुआ है। घूर कर अपनी बेटी को देखा और लवाजमात टेबल पर सजाने लगी। तो खाने देना आंटी, ताकि हम भी देख सकें नाक टहकती दुल्हन कैसी लगती है। रुदाबा खेत खा लगा के बोली। सभी के लोगों को मुस्कुराहट दौड़ गई थी, मगर उसे सिर्फ इस शख्स की मुस्कुराहट पर आग लगी थी, जो कॉल सुनने के लिए बालकनी की जानब बढ़ गया था। तुम भी पिट जाओगी अगर मेरी बच्ची को तंग किया तो। जवेरिया बेगम ने घूर कर बेटी को देखा। नहीं आंटी, ये तो बचपन से ही आंसू की टैंकी है। इसका मेकअप तो ऐसे ही बह जाना। क्या होगा बेचारे इसके दूल्हे का। तनैन जो कब से सब किए बैठी थी, इसके उठने पर मजीद चुप न रह सकी। जवेरिया बेगम अपना कहकहा न जब्त कर सकी, जबकि रुदाबा ने घूरते हुए इसकी पुश्त पर हाथ मारा था। कोई नहीं, बच्ची जिद तो करती है ना, अपने को इतने कहने पर बाल बढ़वाए हैं, मगर फिर वही परकटी बनने में लगी है। वही बेगम को जैसे इसकी शिकायतें जमा करवाने का मौका मिल गया था, जबकि वो सदमे से माँ को देख रही थी, जिन्होंने इसकी लेयर कटिंग को क्या कह दिया था। आंटी, पता नहीं कौन सी माएँ होती हैं जो बेटियों की तारीफों में कलापे मारती हैं, और ये मेरी जायज़ बातों पर भी चिढ़ जाती हैं। झुंझुलाकर जवेरिया बेगम को देखा, जो इन दोनों माँ बेटी की लड़ाई पर मुस्कुरा रही थी। सबूही बेगम ने घूर कर इसे देखा। सबूही, गलत बात है। इसकी इसकी जायज़ बातें तो मानो ना। उसने उसे अपने साथ लगाती हुए हंसकर बोली। नहीं आंटी, उन्होंने मुझे बाल कटवाने नहीं दिए, जबकि जैद को भी कोई मसला नहीं है। इसे भी छोटे ही पसंद है, इसलिए अब शादी के बाद ही इनकी कैद से आज़ाद होंगी। अफसोस से सर हिलाती बोली। इसके अंदाज पर दोनों माँ बेटी अपनी हंसी रोक न सकी, जबकि वो इसे घूर करेंगी। कुछ ही देर में असद और माहीन भी आ गए थे। बालाज और वो देर तक बातों में लगे रहे थे, जबकि बाकी सब कल की तैयारियां मुकम्मल करवा रहे थे। वो कमरे में चली गई थी और उनके जाने की तक दोबारा लाउंज में कदम नहीं रखा था। आज बारात थी। असद, दानैन और रुताबा को पार्लर से बैंक्वेट लेकर पहुंच चुका था। बाकी के इंतजामात बालाज और सारा ने संभाल लिए थे। तमाम मेहमान पहुंच चुके थे, बस बारात का ही इंतजार था। रात के 10:30 हो रहे थे। बेटा मालूम तो करो, कब तक पहुंच रहे हैं वो लोग बारात लेकर। सबूही बेगम मेहमानों से मिलते असद के पास आई, जो किसी को कॉल मिला रहा था। मामा, मैं भी इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करने में लगा हूँ, मगर कोई कॉल नहीं उठा रहा। वो भी परेशानी से बोला। आधे घंटे से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर किसी तरफ से कोई जवाब मसूल नहीं हो रहा था। क्या बात है सबूही, 11:15 हो रहे, कब आएंगे दूल्हा वाले? मदीहा साहिबा ने मशकूक अंदाज में पूछा। जवेरिया बेगम भी करीब आ गई थी। क्या बात है सबूही? इनकी परेशान शक्ल देखकर पूछे बगैर नहीं रह सकी। कुछ नहीं, असद कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं ज़रा नैनी को देख लूँ। मुख्तसर सा जवाब देती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई, जहाँ वो डीप रेड शरारे में दुल्हन का हसीन रूप लिए बैठी थी। लबों पर धीमी मुस्कान लिए रुदाबा और फारिहा से बातों में मगन थी। सबूही बेगम की आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। या अल्लाह, मेरी बेटी को किसी दुख का सामना न करना पड़े। दिल में दुआ गो होती आंख का किनारा साफ करने लगी। अचानक असद ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ था और इसके पीछे जवेरिया बेगम। असद, क्या हुआ? कब पहुंचेंगे वो लोग? सब पूछ रहे हैं। माही ने करीब आकर आहिस्ता आवाज में पूछा। असद ने एक नज़र इसे और माँ को देखा, फिर अपनी सजी संवरी बहन को, जो उसे ही देख रही थी। नहीं आ रहे वो लोग, नहीं आ रही कोई बारात। इसके अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो इन सब के कानों में गिरा था। सब शशतर से इसे देखने लगे। ये क्या कह रहे हो असद? क्यों नहीं आएंगे वो लोग? सबूही बेगम हवास पुख्ता से इसके पास आई थी। सैद की मामा की कॉल आई थी। उसने एक नज़र साकत बैठी दानैन पर डाली और कुछ तवक्कुफ से बोला। कह रही थी आप लोगों ने धोखा दिया है। हम एक रात घर से गायब रहने वाली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। असद गमज़दा लहजे में माँ को अपने हिसार में लिए बता रहा था, जबकि दानैन हसन अब तक बेयकीन सी बैठी थी, जैसे किसी ने इसे पत्थर का कर दिया हो। सैद तो मोहब्बत करता था इससे, एक बार बात तो करता। दिलो दिमाग में चक्कर चल रहे थे। आज इसके साथ एक तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं थी। फारिया ने इसका हाथ थामना चाहा, मगर वह झटके से उठी और बगैर किसी को देखे बराबर वाले कमरे में चली गई, जबकि फारिया नम आंखें लिए तेजी से बाहर निकल गई थी।
یہ یہ سب کیا ہے سبوہی؟ دانین کہاں اور کیوں گئی تھی؟ ان کے بھی ذہن میں بہت سارے سوال تھے جن کے جواب جاننا چاہتی تھی۔ سپاہی بیگم نے ایک نڈھال سی نگاہ ان پر ڈالی اور صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو جویریہ، جو پوچھنا ہے فارغ سے جا کے پوچھو، کیونکہ اس رات کی گواہ بس وہی ہے۔ ان کی بات پر جویریہ بیگم نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ وہ سمجھ نہ پائی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا تھا۔